Even this morning, God should speak with us through His word. Let's all praise God. आज सवेरे भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए मिलकर हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. For this morning meditation, let us open our Bibles to the second book of Samuel, 11th chapter, verse 1, 2, 3 and 8. आज सवेरे हमारा ध्यान के लिए दूसरा समूएल उसका 11वां अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो, और ऊरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु ऊरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. And it came to you in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful looked upon. And David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David said to Uriah, Go down to thy house and wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house, and there followed him a mess of meat from the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house. Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ हो गई। Now, from today, we will meditate about these things that we have read from the Word of God. आज से हम इस वचन को जो हमने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, यहाँ पर हम ध्यान करेंगे। Now here in the first verse we read, and it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले वचन में, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में। Now here at the beginning of the year, kings they used to go for the battle. और यहाँ पर वर्ष के शुरुआत में जो राजा लोग हैं वो युद्ध करने के लिए निकला करते थे। Now according to the word of God in Revelation 1st chapter and 6th verse, we read that we are anointed as kings before God. यदि हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6वां वचन देखें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि हम परमेश्वर के सामने एक राजा होने के लिए अभिषेक किए गए हैं। Maybe 9th verse. Read that verse. आइए उस वचन को पढ़ेंगे। Revelation 1st chapter 9th verse. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 9वां वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी, 6th verse. 6वां वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion Now forever and ever. we are anointed as kings before God. और हम परमेश्वर के सामने राजा होने के लिए अभिषेक Now किए as गए we know हैं। that we have begun this year just a month back. एक महीने पहले ही जैसे हम जानते हैं इस नए साल की हमने शुरुआत की है। Now at the beginning of this year, this word just now we read says that kings they must go to the battle. और जो वचन मैं पढ़ा इस साल की शुरुआत में जो राजा लोग हैं आरंभ में ही युद्ध के लिए निकलना है। Now as we begin this year, we have a certain battles to fight in our life. जैसे जैसे हमारा साल शुरू हुआ है हमारे जीवन में कुछ युद्ध हैं जिनको हमें लड़ना है। Now here in this verses just now we read about 3 characters. इन वचनों को जिनमें हमने पढ़ा यहाँ पर हम 3 प्रकार के स्वभाव देखते हैं।
तीन लोगों के तीन लोगों के बारे में देखते हैं। Here three characters we know, three people we read about here. तीन लोगों के विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं। First is David, पहला है दाऊद, second is Bathsheba, दूसरा है बतशेबा, and third is Uriah. तीसरा है उरिया। Uriah. जो So यूरिया। we'll meditate about these things and what they taught us. और इन वचनों में हमने पढ़ा और हमने सीखा कि उन्होंने हमें क्या सिखाया। Meditate about these things. जब हमने इन वचनों को ध्यान किया, We will meditate about these things. हम इन वचनों को ध्यान करेंगे And we'll learn what these things teaches us. और हम सीखेंगे कि ये वचन हमें क्या सिखाते हैं। Now the first verse says there was a war among the children of Ammon and Israelites. यहाँ पर हम देखते हैं पहले वचन में अमोनियों और इसराइलियों के बीच में एक युद्ध था। Ammon speaks about the flesh. अमोनियो जो है एक मांस को दर्शाता है, शरीर को दर्शाता है। In Amos first chapter 13th verse when we read, आमोस पहला अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं। these Ammonites they are compared with the transgressions of the flesh. और जो शरीर के जो अधर्मिकता है उनसे अमोनियों को तुलना किया गया है। Read that verse Amos 1:13. आइए आमोस पहला अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, आमोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। Now here we read about the Ammonites, their transgressions of यहाँ the पर flesh. देखते हैं कि जो अमोनिय हैं वो अपने शरीर में अपराध करते हैं। So at the beginning of the year there was a battle between Ammonites and Israelites. इसलिए हम देखते हैं कि साल के आरंभ में ही अमोनियों और इसराइलियों के बीच में एक युद्ध था। So there was a war between Ammonites and Israelites. अमोनियों और इसराइलियों के बीच में युद्ध चल रहा Now था। Ammon speaks about flesh, और अमोनी तो एक शरीर को दर्शाते but हैं Israelites they speak about spirit. और इसराइली लोग को हम देखें तो वो आत्मा को दर्शाता In है। Genesis 32 chapter verse 28 we read about Jacob being turned into Israel when he had a encounter with God. उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 38 वचन में देखें, 28 वचन में देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ जो उसका मुलाकात है। So Jacob, when he encountered God, Jacob was turned into a blessing, which is Israel. जब याकूब का सामना परमेश्वर से हुआ तो वो इसराइलियों के लिए एक आशीष होकर बदल गया। Praise be to God's name. परमेश्वर की So at the तारीफ हो beginning गई। of the year, there is a battle that kings need to fight. इस साल के आरंभ में ही एक युद्ध है जो राजा लोगों को लड़ना आवश्यक है। We as the king, those who are anointed as kings, there is a battle for us that we need to fight. हम जो राजा होकर अभिषेक किए गए हैं हमारे सामने एक युद्ध है जिसको हमें लड़ना ही है। What is that battle? वो युद्ध क्या है? A battle between flesh and spirit. शरीर और आत्मा के एक मध्य में युद्ध। Because Jesus said, in the last days, the iniquity shall abound. यीशु ने कहा अंतिम दिनों में अधर्मिकता बढ़ेगी। Now these days when iniquity is abounding everywhere, we the people of God they must be very cautious about these the fleshly works. They should not overtake us. इन दिनों में जब अधर्मिकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हम जो परमेश्वर के लोग हैं हमें ध्यान रखना है कि ये जो शारीरिक चीजें हैं वो अधर्म है हमारे ऊपर हावी ना हो। Because in Galatians 3rd chapter we read that there is a war between flesh and spirit. गलती के पत्री 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि मांस और जो आत्मा है उसके मध्य में एक युद्ध है। मांस नहीं है दादाजी, मांस नहीं है। शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध है। Read that verse in Galatians 3rd chapter 17th verse. गलती के पत्री 3 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। पर मैं यह कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी। Galatians 5:17 sorry. गलती की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Even in 1 Peter 2nd chapter 11th verse we read about that. पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं। Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Second, 1 Peter 2:11. पहला पत्र 2 अध्याय उसके 11 वचन पढ़ेंगे। आप ही पढ़ो, मैंने पढ़ा ना। और तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन। हे
प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा की युद्ध करती है बचे रहो। So there is a war between our flesh and spirit. एक शरीर और आत्मा के बीच में एक युद्ध है। We who are anointed as kings by the Holy Spirit, हम जो अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा राजा होकर अभिषेक किए गए we हैं, need to fight out this battle throughout this year. इस पूरे साल भर हमें इस युद्ध को लड़ना ही है। There will be a battle between our flesh and our spirit. हम एक जो हमेशा एक युद्ध होगा, हमारे शरीर के और हमारे आत्मा के विरोध में हमेशा एक युद्ध होगा। So we need to fight that battle. हमें उस युद्ध को लड़ना ही है। So we need what we need to do. There are certain things that we need to do in order to fight this battle. कुछ बातों को हमें करना जरूरी है कि इन युद्धों को हम लड़ पाएं। Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ हो। Now we read about David that he did not go for war. दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि दाऊद युद्ध में नहीं गया। Here we read about a war in which David is not taking part. यहाँ पर हम युद्ध को देखते हैं जिसमें दाऊद भाग नहीं ले रहा But है, Uriah went to that war. लेकिन यूरिया उस युद्ध में गया। So as I told you, spiritually this is not a literal battle, but spiritually a battle between flesh and a spirit. जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई आश्चर्य युद्ध नहीं है, बल्कि ये शरीर और आत्मा के बीच में एक आत्मिक युद्ध है। In first verse, in that key verse, we read that David he tarried at Jerusalem. He did not go for war. मूल वचन में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि दाऊद ने इस्राएल में वहां पे इंतजार किया, यरूशलेम में इंतजार किया, लेकिन वो युद्ध में नहीं गया। He did not go for war, but he tarried in Jerusalem. वो यरूशलेम में इंतजार करता रहा, लेकिन वो युद्ध में नहीं गया। He was an anointed king. वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया The हुआ राजा first था। verse says at the beginning of the years when kings go forth for war, but he did not go. पहले वचन में जैसे मैं पढ़ा कि साल के आरंभ में राजा युद्ध में जाते हैं, लेकिन वो युद्ध में नहीं गया। Now, as a people of this New Testament church, here we should not follow the life of David, but we need to take an example from the life of Uriah. हम जो नए नियम के कलीसिया के लोग हैं, हम दाऊद के जीवन से और यहाँ पर हम सीखना चाहिए। हम जो नए नियम के लोग हैं, इस स्थान पे, इस जगह में, यहाँ दाऊद के जीवन को अनुकरण नहीं करना। We should not follow David's life here. दाऊद के जीवन को यहाँ पर अनुकरण नहीं करना। Because he tarried in Jerusalem. Instead of going to the war, he tarried in Jerusalem. क्योंकि युद्ध में जाने के बजाय वो यरूशलेम में इंतजार करता रहा। So we as a New Testament church who is fighting this spiritual battle, हम जो नए नियम की कलीसिया है, हम जो आत्मिक युद्ध को करते हैं, we need to take lessons from Uriah, not from David. हम यूरिया से उदाहरण लेना, यूरिया से सीखना चाहिए, ना कि दाऊद से, ऊरिया से सीखना चाहिए। We should not take example from David in this context. इस उदाहरण में हम दाऊद से नहीं सीखना चाहिए, Because he tarried at Jerusalem and did not go for war. क्योंकि वो यरूशलेम में इंतजार करता रहा और वो युद्ध में नहीं गया। Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ हो। What happened when he did not go for the war? जब युद्ध में नहीं गया तो क्या हुआ? He tarried at Jerusalem. So we'll consider certain points whether it's good for us to tarry in Jerusalem or it's bad thing. और हमें जांच कर देखना होगा कि क्या यरूशलेम में इंतजार करना अच्छा है या वो बुरा है। Whether it's good for us to tarry in Jerusalem or it's a bad thing for us. क्या ये यरूशलेम में इंतजार करना हमारे लिए अच्छा है या फिर ये इंतजार करना बुरा है? Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ हो। When we look from David's point of view, it's not good for to tarry in Jerusalem. जब हम दाऊद के तरफ से देखें तो यरूशलेम में इंतजार करना अच्छा नहीं है। But from Uriah's point of view, it's good to tarry in Jerusalem. लेकिन यूरिया के यदि नजरिए से देखें तो यरूशलेम में इंतजार करना अच्छा है। Because from the viewpoint of David, tarrying in Jerusalem is not good for anointed king. दाऊद के यदि हम नजरिए से देखें तो जो एक अभिषिक्त राजा है, उसका यरूशलेम में इंतजार करना ठीक नहीं है। Because when David tarried at Jerusalem without going to the war, in the second verse we read that he committed a sin before God. क्योंकि जब दाऊद यरूशलेम में ठहरा रहा और युद्ध में नहीं गया तो उसने परमेश्वर के विरोध में, दूसरे वचन में हम देखते हैं, पाप किया। As I told you, an anointed king should go to war. जैसे मैंने बताया, एक अभिषिक्त राजा युद्ध में जाना जरूरी But है। he sent others for the war, but he tarried there. लेकिन उसने दूसरों को युद्ध में भेज दिया और स्वयं वहां पर रुका रहा। And in the second verse, what happened? दूसरे वचन में हम देखते हैं क्या हुआ। He took Bathsheba to be his wife. उसने बत्शेबा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया। The spirit of lust attacked
him and because he did not go for the war. जो शरीर की अभिलाषा का जो आत्मा था उसको उसके ऊपर हावी हो गया और वो युद्ध में नहीं जा As पाया। I told you, there is a war between our spirit and flesh. जैसे मैंने बताया कि शरीर और आत्मा के मध्य में एक युद्ध है, And if we are not taking part in that battle, then our flesh will overtake our spirit. यदि आप उस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं तो जो शरीर है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। Some people they think why I need to grow in a spiritual life? I'm happy with the worldly thing. I'm happy in a fleshly mind. कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्यों मैं आत्मिक तौर पर बढ़ना है, मैं तो शारीरिक रूप में शारीरिक में खुश हूँ, यहाँ पे ऐसा ही है। And there is no doubt when you look at their lives. जब ये कोई शंका नहीं है, जब हम उनके जीवन को देखते हैं Being believers from so many years, वो बहुत सालों से एक विश्वासी हैं, being in this faith from so many years, इसी विश्वास में बहुत सालों से बने हुए हैं, there is no spiritual growth in them. लेकिन उनके अंदर आप देखें तो कोई आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है। Their spiritual life has come to a stagnant position. उनका आत्मिक जीवन एक रुके हुए इस परिस्थिति में आ There गया is है। no growth in their spiritual life. उनके आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी There is नहीं no है, good characters formed in them. उनके अंदर कोई अच्छे स्वभाव नहीं बनते हैं। Precisely they are following God. लगातार वो परमेश्वर के पीछे तो हैं, Correct. सही है. सही है, Precisely they are following God. सही रीति से परमेश्वर के पीछे तो हैं, There is no doubt that they are not following God. इसमें कोई शंका की बात नहीं कि But परमेश्वर when you का, look at their life, there is no spiritual goodness in them. लेकिन जब उनके जीवन को देखें तो कोई आत्मिक भलाई उनके जीवन में नहीं है। That's what Jesus said. You will know them by their fruits. इसलिए यीशु ने कहा तुम उनको उनके फलों के द्वारा पहचान You लोगे, will know them by their fruits. तुम उनको उनके फलों के द्वारा पहचान लोगे। When we look at the people of God these days, इन दिनों में जब परमेश्वर के लोगों को हम देखते when we look हैं, at the servants of God these days, इन दिनों में परमेश्वर के सेवक लोगों को जब हम देखते हैं, there is no good thing in them. उनके अंदर कोई भली वस्तु नहीं There is no है, good characters in them. उनके अंदर कोई भले स्वभाव नहीं You है। will be amazed. Such kind of characters they are working in God's people. You will be amazed. आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या ऐसे स्वभाव भी परमेश्वर के लोगों के बीच में काम करते God's हैं। people, they are doing such things in their life. You will be amazed about आप that. देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या परमेश्वर के लोग भी अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं। What caused them? ऐसा करने के लिए क्या मजबूर किया? Their flesh overtook their spirit. उनका शरीर उनके आत्मा के ऊपर हावी हो गया। They did not fight the battle. उन्होंने उस युद्ध को नहीं लड़ा, They did not go to the battle. वो जो युद्ध के मैदान में नहीं Dear गए। ones, we are the anointed kings. हम जो है परमेश्वर के लोग अभिषेक We हैं, have to fight this battle. हमें इस युद्ध को लड़ना ही There is होगा। no other option that we can abstain from this war. इस युद्ध को छोड़ के जाने का हमारे पास कोई और हम नहीं जा सकते। Job 7 chapter 1st verse says our life is a battle. अब अय्यूब 7वां अध्याय पहला वचन कहता है कि हमारा जीवन एक युद्ध है। It's not in Hindi and in English, but in Tamil and also in Malayalam it's written. ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं है बल्कि तमिल और दूसरी भाषाओं में लिखा है, मलयालम में भी है। Read. पढ़िए। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी Read in नहीं? Malayalam. Just one. Anyone? मलयालम में पढ़िए। नहीं है? 7:1 नहीं है? मेरी बाइबल में है। हाँ, करेक्ट। हाँ। वापिस एक बार पढ़ो। वापिस पढ़िए। Correct. It's written there. So the life of man is full of battles. ये एक मनुष्य का जीवन पूरा युद्ध से बना There हुआ is है। every day of a child of God need to fight a battle. प्रतिदिन परमेश्वर के जन को युद्ध लड़ना ही होता As the है। word of God says, our battle is not of flesh and blood. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो युद्ध है वो शरीर और आत्मा के साथ नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। उधर मांस और लहू आएगा, बाइबल पढ़ने से पता चलेगा आपको। So where is मांस कहाँ यूज करना है, शरीर कहाँ यूज करना है? So Saint Paul says our battle is not of flesh and blood. संत पौलुस कहता है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। So our battle is a spiritual battle. हमारा जो युद्ध है एक आत्मिक युद्ध है। Dear ones, each and every one of us who are spirit baptized, they must partake in this battle. प्यारे लोगों, हम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक किए गए हैं, हम इस युद्ध में भाग लेना जरूरी है। Because if you opt out of this battle, क्योंकि still enemy will fight against you. क्योंकि यदि आप इस युद्ध से छोड़कर जाओगे तब भी आपका जो शत्रु है आपके विरोध में युद्ध Some करेगा। people say, why I need to fight battle, and they opt
out of this battle. कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों मुझे युद्ध करना है और वो इस युद्ध से बाहर हो There जाते is हैं। no need for me to fight this battle. मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इस युद्ध को लड़ूं। But remember one thing, if you don't fight, still an enemy will fight against you. लेकिन एक बात को आप याद रखिए, यदि आप युद्ध नहीं करोगे तब भी शत्रु आपके विरोध में युद्ध करेगा। So there is no other option rather than fighting this battle against that enemy. शत्रु के विरोध में युद्ध करने के अलावा आपके पास और कोई चुनाव नहीं है। Because if you not fight this battle, your flesh and the works of flesh will overtake you. क्योंकि आप यदि युद्ध नहीं करोगे तो शरीर और शरीर के कार्य आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। Because David being a king, he did not go for war and he fell for lust. क्योंकि दाऊद राजा होने के बावजूद वो युद्ध में नहीं गया और वो अभिलाषा में गिर As I गया। always says, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, David killed Goliath. जैसे मैं कहता हूँ कि दाऊद ने गोलियत को Did a मारा, mighty work, ये बहुत ही सामर्थ्यवान काम किया, but he fell for Bathsheba. लेकिन वो बैतशेबा के लिए गिर गया। What is the use then? उसका फिर क्या उपयोग हुआ? Outwardly, we may be doing so many things for the ministry. सांसारिक तौर पर सेविका के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते होंगे, बाहरी तौर पर बहुत बड़े बड़े काम करते We होंगे, might be helping in the ministry. हम सेविका में मदद करते We will be होंगे, doing a lot of work in the faith home. हम चर्च में बहुत काम करते होंगे, But how's inwardly we are? लेकिन अंदरूनी तौर पे अंदर से हम How's our कैसे हैं? mind? हमारा मन कैसा How's है? our thoughts? हमारे विचार कैसे There हैं? is a saying in English, इंग्लिश में कहावत है, mind your thoughts when you are alone. जब आप अकेले हो तो अपने जो विचार है उन पर लगाम लगाओ, And mind your words when you are among people. और जब आप लोगों के बीच में हो तो अपने शब्दों पर लगाम When लगाओ। you are alone, mind your thoughts. When you are among people, mind your words. जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर लगाम लगाओ, और जब आप लोगों के बीच में हो तो अपने बोलने पे अपने Because शब्दों पर David लगाम did लगाओ। not go for war. When he rose up out of sleep, he saw Bathsheba and he took her. क्योंकि दाऊद युद्ध में नहीं गया और नींद से जैसे उठा उसने सामने बैतशेबा को देखा। Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ हो गई। Jerusalem speaks about the church. और यरूशलेम कहने पे चर्च को दर्शाता है, Jerusalem speaks about the church. जो यरूशलेम कहने पे कलीसिया को दर्शाता We है। need to go out of the church in order to fight this battle. We need to reach out to people in order to fight this battle. हमें कलीसिया से बाहर जाना होगा, हमें लोगों के पास जाना होगा इस युद्ध को लड़ने के लिए। Sadly, there are so many among us who never shared their testimony to anyone. ये बहुत ही दुखद बात है कि हम में से अधिकांश लोगों ने दूसरों को अपनी गवाही को नहीं बताया We है। never shared our testimony, the goodness of God and the work God did in our life to anyone in our life. हमारी गवाही का परमेश्वर ने जो भले काम भलाइयां हमारे जीवन में किए, दूसरों को कभी भी हमने गवाही को नहीं बताया है। But Jesus said, "Thou shalt be a testimony for me. When you will receive the Holy Spirit, you will become a testimony for me." लेकिन यीशु मसीह ने हमसे कहा है, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम मेरे लिए गवाह होना। Dear ones, if we will not go for this war, we will be overtaken by the flesh and the works of the flesh. प्यारे लोगों, यदि हम इस युद्ध में नहीं जाएंगे तो हम शरीर के द्वारा, शरीर के कार्यों के द्वारा हम हावी हो जाएंगे। Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ Dear हो। ones, we need to fight out this battle and we need to become overcomers. प्यारे लोगों, हमें इस युद्ध को लड़ना है और हमें जयवंत बन के बाहर निकलना Why we है। need to become overcomers? हमें क्यों जयवंत बनना है? Because Revelation 3:21, the promise has been made to the overcomers, the promise of throne. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 21 वचन में पहले से ही जयवंतों के लिए एक वायदा दिया गया है, जो वायदा है एक सिंहासन देने Jesus का। said, "As I overcame and sat upon the throne of my Father, यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जैसे मैं जय पाया और अपने पिता के सिंहासन पर विराजमान हो गया, all those who will overcome, I will make them to sit upon the throne." और जो भी जयवंत होंगे उनको भी मैं अपने पिता के साथ सिंहासन So में विराजमान one thing we कराऊंगा। must understand, without fighting battle and without victory, there is no throne for us. एक बात हमको समझना होगा कि आपको युद्ध लड़े बगैर या जयवंत होए बगैर आपके लिए कोई सिंहासन नहीं है। All those who want to sit upon that throne, please shout an hallelujah. हम में से जितने लोग इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, आइए जोर से एक हालेलुया पुकारेंगे। Everyone want to sit on that throne, but nobody wants to fight. हर एक जन उस सिंहासन पर बैठना तो चाहता है, लेकिन लड़ाई को कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ, If you will inherit that throne without the battle, यदि आप उस जो सिंहासन है, आप लड़ाई को लड़े बिना ही उसको प्राप्त कर लोगे तो, without being victorious, if you will inherit that throne, यदि आप जयवंत बने बिना यदि आप सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाओगे तो your throne and your kingdom will not last longer. आपका सिंहासन और आपका राज्य बहुत दिनों तक टिका नहीं रहेगा। For example, उदाहरण के लिए Solomon.
सुलेमान को देखिए, King Solomon. राजा सुलेमान, He did not fight any battle. उसने कोई भी युद्ध को नहीं लड़ा। He was born with a silver spoon in his mouth. अपने मुंह में एक चांदी की, ऐसा नहीं बोलते हो वो धन दौलत के बीच में पूरा उस धनवान महल के बीच में जन्म लिया. वो महलों के बीच में जन्म लिया। He did not suffer. उसने कोई कष्ट नहीं उठाया। Like his father, he did not suffer. अपने पिता के समान उसने कोई भी कष्ट को नहीं उठाया। God raised this David from zero. और परमेश्वर ने जीरो से, शून्य से दाऊद को उठाया। But Solomon was not like that. लेकिन सुलेमान ऐसा नहीं था। Solomon inherited the kingdom which was already made for him. सुलेमान ने उस सिंहासन के ऊपर विराजमान हुआ जो पहले से उसके लिए बनाया गया And था। that's the reason he could not value that throne and that kingdom. और यही कारण था कि उस सिंहासन को वो उतना मूल्य नहीं दे पाया। And that's why he fell for the woman, he fell for all the strange things, and he went after other gods. इसलिए वो स्त्रियों के लिए गिर गया और सारे अन्य बातों के लिए गिर गया और अन्य देवताओं के पीछे चला गया। Hey, John, what you are doing? Last meeting also I told you not to do this thing. Every time I have to tell you now. Hey. So he got the throne all prepared. उसने जो सिंहासन को प्राप्त किया वो पहले से ही तैयार था। He did not earn it. उसने उसको कमाया He नहीं did था। not gain it. उसने उसको प्राप्त नहीं He किया got था। it in he got everything with all preparedness. वो सब कुछ तैयारी के साथ उसके सामने परोसा गया था। That's why he did not value it. इसलिए उसने उसका मूल्य को नहीं जाना। That's why his kingdom and his throne did not last longer. इसलिए उसका राज्य, उसका सिंहासन बहुत दिनों तक टिका नहीं रहा। When God says about David, God himself testifies, but not for Solomon. दाऊद के लिए परमेश्वर स्वयं गवाही देते हैं, लेकिन सुलेमान के लिए कोई गवाही नहीं देते। Dear ones, we have to gain this throne which comes through a victorious life. प्यारे लोगों, ये जीवन जीने के द्वारा जो सिंहासन प्राप्त होता है उसे हमें इसे कमाना पड़ेगा। Thing which is not earned and gained, you will not value that thing. जो बातें आपने कमाई नहीं है उसके लिए आप कोई मूल्य नहीं देंगे। Now we need to know the values of these things which we are receiving from God freely. परमेश्वर से जो हमें सेत में जो बातें मिलती हैं उन बातों की कीमत को हमें समझना Because चाहिए। everything is free for us, God is giving us, that's why we don't value it. क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है, इसलिए उस बात की कीमत को हम नहीं जानते हैं। Now you send your children for all the tuitions, school. Why? आप अपने बच्चों को सारे ट्यूशन में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, क्यों भेजते On हैं? time you are sending them. आप उनको बिल्कुल समय पे भेजते हैं। Why? क्यों? Why? Huh? Because you are paying for that. क्योंकि आप वहां पर फीस देते हैं, Because you are paying for their education. क्योंकि उनके पढ़ाई के लिए आप कीमत चुकाते हैं। That's why you are early morning you are making them rise, get ready, and sending them for the school. इसलिए सुबह सुबह उनको उठा देते हैं, तैयार करते हैं और स्कूल के लिए भेज देते हैं। Is it same thing with the church? क्या ऐसा ही आप चर्च में आने के समय करते हैं? आप खुद ही 9 बजे उठते हो, बच्चे कहाँ उठेंगे? आप खुद 9 बजे उठते हो, 9:30 बजे रेडी होते हो, 10 बजे मीटिंग में आते हो। Because we are not paying. क्योंकि हम यहाँ पर कोई मूल्य नहीं चुका रहे हैं। There is no cost for the presence of God. परमेश्वर के हज़ूरी में आने के लिए कोई कीमत नहीं चुका रहे That's हैं। why we are taking it for granted. इसलिए हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते। गंभीरता से नहीं So लेते dear हैं। ones, because it's not earned, the throne we have to earn that throne in order to know the value of that throne. प्यारे लोगों, उस सिंहासन को हमने पहले कमाना होगा, तभी हम उस सिंहासन के मूल्य को जान पाएंगे। For example, David did not go for the war, but he was overtaken with that adultery or with that lust. दाऊद तो युद्ध के लिए नहीं गया, उस लालसा और उस व्यभिचार में वो फंस गया। So if we are seen with the works of the flesh in our life, that's the reason we are not fighting. The reason we are not fighting the battle. यदि हम अपने जीवन में शरीर के कामों को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम युद्धों को नहीं लड़ रहे हैं। Another spirit which wherewith he was overtaken. दूसरा एक आत्मा था जिस आत्मा ने उसके ऊपर हावी हो गई थी। That was the spirit of slackness. वो था एक लापरवाही का एक आत्मा, आलसी का एक आत्मा, The slackness, the spirit of slumber. आलसीपन का एक आत्मा। Up to evening, the word of God says, up to evening he slept. परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि सांझ तक वो सोया रहा। In the first verse and second verse, up to evening he slept, and when he got up in the evening, he went to the terrace
just to have a walk there. अब पहले और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि वो शाम तक सोया रहा और शाम को उठा और अपने छत पर टहलने के लिए गया। And that's when he was taken by the spirit of slumber. He was not busy in the work of God. He was not busy in the battle, and he was taken with the spirit of slumber. क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य में लिप्त नहीं था, युद्ध में लिप्त नहीं था, इसलिए जो आलसीपन का आत्मा था उसके ऊपर हावी हो गया। The spirit baptized people, they should not be overtaken by the spirit of slumber. परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक किए गए लोग जो आलसीपन का आत्मा है उसके द्वारा हावी नहीं होना चाहिए। When the parents of Jesus asked, when Mary and Joseph asked, what you did this? Why you did this? यीशु के माता पिता मरियम और यूसुफ ने कहा कि तुमने ये क्या किया? And they asked Jesus, why you did to us? तो ये तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? Jesus said, should I not be busy in God's work, in my Father's business? यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैं अपने पिता के व्यापार में व्यस्त ना रहूं? That shows the ferventness of the fervency in the spirit for the work of God. वो दिखाता है कि वो परमेश्वर के काम करने में कितना लौलीन है। How much we are more fervent in the work of God. हम परमेश्वर के कार्य करने में कितना अधिक लौलीन How हैं। much we are laboring for God these days. हम इन दिनों में परमेश्वर के लिए कितना अधिक परिश्रम If we करते are हैं। overtaken with the spirit of slumber, dear ones, the spirit of lust will also come along with that. प्यारे लोगों, यदि आप आलसीपन की आत्मा से ग्रस्त होंगे तो ये जो लालसा होगा वो आपके ऊपर आ जाएगा। The people of God, the spirit baptized people of God, they should not be slack or slumber concerning the kingdom of God. Rather, they should go out and fight this battle. परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक किए गए लोग इस जो आलसीपन की आत्मा है उससे ग्रस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उठ के इसके बजाय परमेश्वर के लिए परिश्रम करना चाहिए। When we read Romans 11 chapter verse 7 and 8, जब हम रोमियो के पत्री 11 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन पढ़ते हैं तो इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear unto this. now here we read about the people of Israel. यहाँ पर हम इस्राएल लोगों के विषय में देखते हैं God sent, because they did not receive Jesus as their Christ. क्योंकि उन्होंने मसीह को यीशु को मसीह के तौर पर ग्रहण नहीं किया था। They rejected him. उन्होंने उसका तिरस्कार किया। That's when the Gentiles they were brought in. इसलिए जो अन्य जाति हैं वो अंदर लाए See, गए। we are God's people. हम देखिए, हम परमेश्वर के लोग हैं, But according to the law, according to the covenant, we are outsiders. We are not God's chosen people. लेकिन व्यवस्था के अनुसार देखें या वाचा के अनुसार देखें तो हम तो है वो बाहरी लोग हैं जो अंदर लाए गए हैं। Because God's own people, Jews and Israelites, they did not receive Jesus as a Messiah, and that's why we were brought in that we believe Him and be saved. क्योंकि परमेश्वर के अपने लोग जो इस्राएल लोग थे, वो जो यहूदी लोग थे, उन्होंने यीशु को मसीह की तरह ग्रहण नहीं किया, इसलिए परमेश्वर हम जो अन्य जाति थे हमें अंदर लेके आया And we believed and we were saved. और हमने विश्वास किया और हम उद्धार पाए That's why we came instead of them. और इसलिए उनकी बजाय हम अंदर आ गए And upon them the spirit of slumber was sent. और उनके ऊपर एक जो आलसीपन का आत्मा भेजा गया, The लिखा आलसीपन? नींद की आत्मा भेजा गया। The spirit of slumber was sent upon them that they seeing they must not see. परमेश्वर ने उनको भारी नींद में डाल रखा ताकि वो जो देखते हैं देख ना पाए। Eyes that they should not see and ears that they should not hear. Unto this day. ऐसी आंखें दी जो देखे नहीं और ऐसे कान जो ना सुने, आज के दिन तक ऐसा ही है। So let's not, as God's people, let's not the spirit of slumber overtake us. प्यारे लोगों, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, ये नींद की आत्मा हमारे ऊपर हावी ना हो। These days children they sleep up to 11 o'clock, 12 o'clock. They'll sleep in the night 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. They'll be busy in their phones and parents they don't bother. इन दिनों में परमेश्वर के बच्चों को देखें तो रात को 3 या 4 बजे तक वो सोते हैं और दिन में 11 या 12 बजे तक सोते रहते हैं और माता पिता इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। Somewhere I read these days children or Gen Zs they are sleeping not because of they are feeling sleepy,
because their data got over. इन दिनों में मैंने एक जगह पढ़ा, जो जेंजी है या जो इन दिनों के जो जवान लोग हैं वो इसलिए नहीं सोते कि उनको नींद आती है, इसलिए सोते हैं कि उनका मोबाइल का जो डेटा है वो खत्म हो जाता है। Because their net pack got over and they slept. उनका जो नेट चलाने का जो पैक होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो सो जाते हैं। अभी 3 बजे कहाँ से करेंगे बोल के, so that's why they slept, because they were feeling sleepy. That's why for that reason they did not sleep. 3 बजे कहाँ से रिचार्ज करेंगे करके सो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको नींद आती है इसलिए सोते हैं। And now these days parents, they are so helpful. They have provided with them the Wi-Fi, unlimited data, no problem. इन दिनों Go with it. माता पिता इतने उदार हैं कि वो अपने बच्चों को अनलिमिटेड वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। So they are taking full use of that. उसका बच्चों ने पूरा उपयोग किया है। All those who agree with me, please shout an hallelujah. जितने लोग इससे सहमत हैं, आइए जोर से हालेलुया पुकारेंगे। Because we feel shame, that's why. हम शर्मिंदा होते हैं इसलिए। But dear ones, let's not be overtaken with the spirit of slumber. प्यारे लोगों, इन दिनों में इस बाहरी नींद की आत्मा के द्वारा हम ग्रस्त ना हो। Our youth, they are sleeping up to 11 o'clock, 12 o'clock. You'll see them they'll be sleeping all the time. हमारे जवानों को हम देखें, जब भी देखें 11-12 बजे तब सोते रहते हैं। This is a spirit of slumber overtaking us. ये एक बाहरी नींद की आत्मा है जो हमारे ऊपर ग्रस्त हो गई है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Now, David was overtaken with this spirit. जो दाऊद था इस आत्मा के द्वारा ग्रस्त हो गया था। Because of excess sleeping, he sinned being in Jerusalem. यरूशलेम में होने के बावजूद अधिक नींद में होने की वजह से उसने ये पाप में गिर गया। Praise be to God. परमेश्वर नाम की तारीफ Now, हो। when we look at the life of Uriah, जब हम उरिया के जीवन को देखते हैं, he was in Jerusalem, but he consecrated his life. वो यरूशलेम में तो था, लेकिन अपने जीवन को उसने मखसूस किया था। Now, as I told you, this is an example that we need to follow. और जैसे मैंने आपको बताया, यह एक उदाहरण है जिसका हमें पीछा करना है। Though he was permitted by king to go to his house, हालांकि उसके राजा ने उसको अनुमति दिया कि तुम अपने घर में जाके आराम करो। in 8th and 9th verse we read that David told him that go to your house and take rest, but he did not go. 8वें और 9वें वचन में देखें तो दाऊद ने उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और वहां विश्राम करो, लेकिन वो नहीं गया। What was the reason? क्या कारण था? What was the reason that Uriah did not go to his house? क्या कारण था कि उरिया अपने घर को नहीं गया? Because there was battle going on. क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा था। And he said, all my servants, all the king's servants, and everyone is in the battlefield, and I should go and rest at my house. सारे जो सेवक है राजा के, सारे सैनिक है, सभी युद्ध में है, तो क्या मैं अपने घर को जाके आराम करूं? We read 11th verse. आइए 11 वचन को पढ़ेंगे। 11th verse is it? ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। Read in English also. And Uriah said unto David, the ark and Israel and Judah abide in tents, and my Lord Joab and the servants of my Lord are encamped in the open fields. Shall I then go into mine house to eat and to drink and to lie with my wife? As thou livest, as thy soul liveth, I will not do this thing. Though he was permitted by king to go to his house, he did not go. हालांकि उसके राजा के द्वारा उसको अनुमति दिया गया था कि अपने घर में जाके आराम He said करे। there is a battle going on. उसने कहा एक युद्ध चल रहा This है। is not the right time. I should go and rest in my house. ये सही समय नहीं है कि अपने घर में जाके मैं आराम करूं। I should be busy in the work of the Lord. मैं अपने परमेश्वर के कार्य में लिप्त होना चाहिए। So though he was permitted to go, he tarried in Jerusalem. He tarried there. He sat at the door. The word of God says. हालांकि उसको घर में जाने की अनुमति ले गई थी, लेकिन उसमें वचन में पढ़ते हैं कि वो द्वार पर ही इंतजार करता रहा। 8th and 9th verse we read that he slept at the door. हम 8वें और 9वें वचन में पढ़ते हैं कि वो द्वार पर ही सो गया। What does this speaks about? ये क्या दिखाता है? Consecrated life. ये मखसूसियत का जीवन को He दर्शाता है। consecrated his life for that battle. उसने उस युद्ध के लिए अपने जीवन को मखसूस किया था। You know, if you will not tarry at, you will know if you will not tarry at the door, something else will be tarrying at the door. यदि आप द्वार पर इंतजार नहीं करते हैं तो कोई और बात आपके लिए द्वार पर इंतजार करेगी। You know what is that? If you will not tarry at the door, what is the other thing that will tarry at door? आप जानते हैं कि यदि आप द्वार पर इंतजार नहीं करेंगे तो वो दूसरी वस्तु या दूसरी बात कौन सी है जो आपके लिए द्वार पर इंतजार करेगी? Anyone? कोई बता सकता है? Sin.
sin will tarry you at door. पाप द्वार पर इंतजार करता This is है, what happened with the David. और यही दाऊद के साथ हुआ। Uriah, he tarried in Jerusalem and slept at the door. That's why he was saved from that sin. But because David, he did not waited at the door. That's why the sin tarried for him. उरिया तो यरूशलेम में रहता हुआ द्वार पर ही इंतजार करता सो गया, लेकिन जो दाऊद था उसने यरूशलेम में रहते हुए द्वार पर इंतजार नहीं किया, इसलिए वो पाप में गिर गया। Now this door also speaks about waiting for the coming of the Lord. ये जो द्वार है परमेश्वर के आगमन के लिए इंतजार करने को भी दर्शाता है। And as Jesus said, who is that servant when his master will come, he will be ready to open the door for him. यीशु ने कहा ऐसा कौन सा दास होगा जब परमेश्वर आएगा तो उस स्वामी आएगा तो उसको द्वार को खोलने के लिए तैयार रहे। So who is that servant who is waiting for his master to come that he may open the door for him? वो दास कौन है जो अपने स्वामी के आने पर द्वार को खोलने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। Speaks about the coming, preparing ourselves for the coming of the Lord. ये हमें अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करने को बताता है। Uriah, in spiritual manner, he was ready for the coming of the Lord, but David was not at that time. उरिया के जीवन को देखें तो आत्मिक तौर पर परमेश्वर के आगमन के लिए वो बिल्कुल तैयार था, लेकिन दाऊद का जीवन देखने पर वो तैयार नहीं See, था। Uriah, he kept himself from all the carnal relations at the time of battle. युद्ध के समय उरिया को देखें तो सारे संसारिक जो बातें थी उनसे अपने आप को उसने अलग रखा। No, संसारिक बातें नहीं, शारीरिक बंधनों से उसने संबंधों से उसने अपने आप को अलग रखा। He kept himself from all the carnal relations at the time of battle. युद्ध के समय में सारे शारीरिक जो संबंधों थे उनसे अलग रखा। I gave you the example in the Bible study also. मैंने बाइबल अध्ययन में भी आपको एक उदाहरण दिया था। Again, I'll ask you if you remember that. मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ यदि आपको याद है तो। What is the strange thing happened in the family of Noah? नोह के परिवार में वो कौन सी एक खास बात Now हुई? tell me how many years that they preached and how many years it took for them to build the ark? आप ये बताइए कि कितने सालों तक उन लोगों ने प्रचार किया और कितने साल लगे उस जहाज को बनाने के लिए? 100 years. Okay, 100 years. Many they don't know because they are not coming for the Bible study. Okay, so it took 100 years for them. उनको जहाज बनाने के लिए 100 साल लगे। And you know what happened in the 100 years? आप जानते Any हो? strange thing happened in the 100 years? Anyone, if you remember? 100 साल के मध्य में ऐसी कौन सी असामान्य बात हुई आप बता सकते हैं? Huh? They did not beget children. उनके कोई भी बच्चे पैदा नहीं हुए। Noah, children, they did not beget children. नोआ के बच्चे थे, उनके बच्चे के कोई बच्चे नहीं पैदा हुए। They did not have grandchildren. नोआ के कोई जो नाती पोते नहीं हुए। For 100 years, that means for 100 years they did not beget children. 100 सालों तक उन्होंने कोई बच्चे पैदा नहीं किए। क्यों? What was the reason? Because they were busy in building the ark. क्योंकि वो उस जहाज को बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। They were busy in the work of God. और परमेश्वर के काम करने में बहुत ज्यादा They were व्यस्त थे। entrusted with the work and they were found faithful in that work. एक काम उनको सौंपा गया था, उस काम में वो बिल्कुल विश्वास होकर निकले। What about our life? हमारे जीवन के बारे में We क्या? are busy with so many works in these days rather than the work of God. इन दिनों में और भी अधिक कामों में हम लिप्त हैं बजाय परमेश्वर के कार्य में We लिप्त are होने doing के। less for God, we are doing more for ourselves. परमेश्वर के लिए कम काम करते हैं लेकिन अपने लिए बहुत अधिक We are परिश्रम doing करते हैं। nothing for God, but we are doing much for ourselves. हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते हैं और अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। Dear ones, we need to understand these are the days when we need to be found in that battle. We need to be busy in the work of God. प्यारे लोगों को ये समझना होगा ये वही दिन है जिन दिनों में हमें परमेश्वर के कार्य में बिल्कुल लिप्त होना होगा। If like David you will think, let Joab go and others go for the battle and I'll tarry in Jerusalem, you will be overtaken by flesh, dear ones. लेकिन यदि आप दाऊद की तरह सोचेंगे कि योआब जाने दो, दूसरे लोग जाने दो युद्ध में, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 Timothy 2nd chapter verse 3 and 4 says we are the soldiers of Christ. दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 3 और 4 वचन में देखते हैं हम मसीह के सैनिक हैं। Read that verse. आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangle himself with the affairs of this The life. man who go for war or battle,
he will not entangle himself with the other things. जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है वो अपने आप को किसी संसार के कामों में नहीं फंसाता। For example, उदाहरण के लिए someone goes for the battle मान लीजिए कोई युद्ध में जा रहा है and the wife calls, और उसकी बीवी उसको बुलाती है, where are you? आप कहाँ हो? It's been 10 o'clock, where are you? आप 10 बज गए, आप कहाँ हो? I'm in the battlefield. Come back, no need for the battle. अभी मैं युद्ध के मैदान में हूँ, आप लड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप घर वापस आ जाओ। This is what happening in these days. इन दिनों में यही हो रहा है। Where are you? आप कहाँ हो? I'm in the church. मैं चर्च में हूँ। What you are doing there? Come back to the home. चर्च में क्या कर रहे हो? घर में वापस आ जाओ। While coming back, bring some tomatoes and potatoes. घर में आने के समय में कुछ टमाटर आलू ले आओ। This is what happening. यही हो रहा We है। are not doing it and we are not letting others to do that. हम खुद भी नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी नहीं करने दे रहे That's हैं। what while others they are doing, we are feeling jealous. We are not letting them to do that. इसलिए जब दूसरे लोग करते हैं तो हम जो जलन से भर जाते हैं उनको भी A नहीं करने man who देते। goes for battle will not entangle himself with the other things. जो व्यक्ति युद्ध में जाता है वो आपको अपने आप को दूसरे बातों में नहीं फंसाता। As the soldiers of Christ, we need to fight this battle, dear ones. प्यारे लोगों, हम जो मसीह के योद्धा हैं, हमें इस युद्ध को लड़ना ही है। So from David's point of view, it's not good for us to tarry in Jerusalem. दाऊद के यदि नजरिए से देखें तो हमारे लिए यरूशलेम में ठहरना अच्छा नहीं But है। from Uriah's point of view, it's good for us to tarry in Jerusalem. लेकिन यूरिया के नजरिए से देखें तो हमारा यरूशलेम में ठहरना बहुत अच्छा है, Because there is war going on these days. क्योंकि इन दिनों में एक युद्ध चल रहा है। With whom that war should be? वो युद्ध किसके साथ होना चाहिए? Your own self. हमारे अपने आप से। We should not fight others. हम दूसरों से नहीं लड़ We सकते, have to fight for within ourselves. हमें अपने अंदर स्वयं से लड़ना है। We are our biggest enemy. हम खुद ही अपने आप के एक बहुत बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु हम ही है. We are our biggest enemy. हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। If someone who overpowers himself, he will overpower everything. जो अपने ऊपर काबू कर लेता है वो सारी बातों के ऊपर काबू कर The लेगा। word of God says the man whose spirit is not in his control is like a broken city. परमेश्वर का वचन ये कहता है जिस व्यक्ति की आत्मा उसके कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है. वश में नहीं है, वो एक टूटे हुए शहर के समान है। नगर पना उस शहर के समान है जिसकी शहर पना टूटी हुई है. So we have to fight this battle with our own selves. ये युद्ध हमें अपने आप से लड़ना है। But what we are doing? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? We are fighting with others. हम दूसरों से लड़ रहे हैं। We are fighting with co-believers. हम अपने सह विश्वासियों से लड़ रहे हैं। We are fighting in the families. हम अपने परिवारों में लड़ रहे We हैं। are fighting in the church. हम चर्च में लड़ रहे We are हैं। fighting with the servants of God. परमेश्वर के सेवक लोगों से लड़ रहे हैं। Sad to say, servants of God, they are fighting with other servants of God. और दुखद बात है कि सेवक लोग भी दूसरे सेवकों से लड़ते We हैं। are not fighting with ourselves, we are fighting with others. हम स्वयं से तो नहीं लड़ते हैं, बजाय इसके हम दूसरों से A लड़ते man हैं। who cannot overpower his self, he cannot overpower anyone. जो व्यक्ति अपने स्वयं पे काबू नहीं कर सकता वो किसी और के ऊपर काबू नहीं कर सकता। When Jesus went to take Peter as a disciple, when Jesus called Peter, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को अपना चेला होने के लिए बुलाने गए, when Jesus went there and when he was near to Jesus, what Peter said after the miracle was happened? जब पतरस यीशु को नहीं जानता था, जब वहां पे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ तो उसके बाद पतरस ने यीशु से क्या कहा? कोई बता सकता है? हे प्रभु मैं पापी हूँ, यहाँ से Please go away from me, I'm a sinner. हे प्रभु मैं पापी हूँ, यहाँ से चला जा। When Jesus came close to his life, he could see his life that he's a sinner. जब यीशु उसके जीवन के बहुत करीब आ गया, वो देख पाया कि वो एक बहुत बड़ा पापी है। When Jesus came in his life, जब यीशु उसके जीवन में आया, he could say, I'm a sinner. वो कह पाया मैं एक पापी हूँ। Today we are saying, you are sinner, you are sinner, you are sinner, you are sinner. लेकिन हम दूसरों को कहते हैं तू पापी है, तू पापी है, तू But when पापी है। Jesus comes in our life, लेकिन जब यीशु हमारे जीवन में आता है, that can turn that saying and say that we are sinners. वो उस कहने को बदल के कह देगा कि हम पापी हैं। For example, उदाहरण के लिए Isaiah in 5th chapter he says, woe unto you, woe unto you, woe unto you, woe unto you. यशायाह 5वें अध्याय में कहता है तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर He's हाय। telling to others, woe unto you, woe unto you, you are not right, you are not good, you are like that, you are sinner, you are wicked, you are telling, he's putting all the woes upon people. दूसरों के ऊपर वो हाय लगाता है कि तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो, तुम्हारे ऊपर हाय, तुम बहुत अधर्मी हो करके दूसरों पे हाय लगाता है। Now the 6th chapter comes. लेकिन जब 6वां अध्याय आता है, First verse. पहला वचन, He received the
vision of God. उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया। He saw God sitting on the throne. उसने देखा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा And है। he saw cherubims proclaiming, holy, holy, holy Father, the Lord. उसने केरूबों को देखा, वो ये पुकार रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र You है। know what that vision did in his life? आप जानते हैं वो दर्शन ने उसके जीवन में क्या किया? That vision made him to saw his life. वो दर्शन उसको अपने जीवन को देखने के लिए मजबूर किया। You know that vision was threefold. वो दर्शन जो है वो तीन तौर पर हम देख सकते हैं। That vision is threefold. वो दर्शन जो तीन भागों में देख सकते हैं। तीन गुना है। First, that vision was of height. पहला वो एक ऊंचाई का एक दर्शन है। Secondly, that vision was of depth. दूसरा वो दर्शन एक बिल्कुल निचलेपन को दर्शाता है, गहराई को दर्शाता है। Thirdly, that vision was of breadth. और तीसरा वो एक चौड़ाई को दर्शाता है। It was of height, लंबाई, वो लंबाई, it was of depth, गहराई, and it was of breadth. वो चौड़ाई। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। That vision that Isaiah got was three-dimensional. वो जो दर्शन यशायाह को मिला था वो त्रिकोणीय है। Upward, ऊपर के भाग का, inward, वो अंदरूनी तौर पर, outward. बाहरी तौर पर। I'll explain you. मैं आपको समझाऊंगा। First, पहला, that is upward. पहला ऊंचाई। In the first verse, the word of God says, he saw God sitting upon a throne, high and lifted up. That is a vision of height. पहले वचन में हम देखते हैं, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। वो एक ऊंचाई को दर्शाता है। So that's a vision of upward, a height, the vision of height. वो एक ऊंचाई का दर्शन है, ऊंचे जाने का दर्शन है। Second dimension of that vision was depth. उस दर्शन का जो दूसरा भाग है वो गहराई है, Inward. वो अंदर। In fifth verse, he saw the depth of his life. पांचवें वचन में उसने अपने जीवन की गहराई को देखा। In fifth verse he says, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. He saw the inner parts of his life and he found that I am a sinner. पांचवें वचन में देखें तो उसने अपने जीवन की गहराई को देखा और वो यूं कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। उसने अपने जीवन की गहराई को देखा। He saw that I'm a man of unclean lips. उसने देखा कि मैं एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। That's the vision of depth, inward vision. वो एक अंदर का एक दर्शन उसने पाया जो कि उसकी गहराई को दर्शाता And है। thirdly, that vision was of outward. और तीसरा हम देखें तो वो बाहरी एक दर्शन है। That's the breadth, the vision of breadth. वो एक चौड़ाई का दर्शन है। Now where we read in ninth verse. 9वें वचन में पढ़ते And हैं, he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। He saw people, they are far away from God. That's why he was sent. In 8th verse he said, I shall go. When God asked him, whom shall I send? He said, here I am, send me. उसने देखा कि लोग परमेश्वर से बहुत ही दूर हैं, इसलिए जब परमेश्वर ने पूछा मेरे लिए कौन जाएगा तो उसने कहा मुझे भेज, परमेश्वर मैं जाऊंगा। First he saw God on the height. सबसे पहले उसने परमेश्वर को ऊंचाई पे विराजमान Secondly, देखा। he saw himself in the depth. दूसरा उसने अपने आप को एक गहराई में पाया। Thirdly, he saw the breadth of that world, that so many people, they are unsaved, and I'm sent for them to be saved. उसने संसार की चौड़ाई को देखा, इतने सारे लोग हैं जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं। उसने कहा है परमेश्वर मुझे भेज कि मैं उनका उद्धार कर पाऊं। He was sent by God that they must be saved. उसने परमेश्वर ने उसको भेजा ताकि वो लोग बचाए जाएं। Dear ones, how's our life these days? सारे लोगों इन दिनों में अपने जीवन को देखने We में हमारा who are जीवन putting कैसा है? allegations on others. हम जो दूसरों पे दोष लगाते हैं। We are not. The normal thing what we say, मैंने सुना, देखा नहीं. We have not seen, only heard. मैंने सुना, हम बोलते हमने कभी कोई चीज देखी नहीं। हम जब मैंने सुना उसके बारे में, वो कैसा है? I've heard about that person, how wicked he is. मैंने सुना उसके बारे में वो कैसा है। One place I was serving. एक जगह में मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा था। I was transferred to another place. मैं एक दूसरी जगह पर मेरा स्थानांतरण हुआ। And I heard that sister said, I've heard about that brother, not seen. अब मैं एक सिस्टर जी ने कहा कि मैंने उस ब्रदर जी के बारे में सुना है। That sister never served with me. वो सिस्टर जी ने कभी भी मेरे साथ सेवा नहीं किया। जब मेरे वहां पहुंचने से पहले That ही sister, I've heard about that brother. मैंने उस भाई के ब्रदर के बारे में सुना है। This is what we are depending upon these days. सुना है, मैंने
मैंने सुना, देखा नहीं। बोलो। इन दिनों में इसी बात के ऊपर निर्भर रहते हैं कि मैंने सुना है, कभी भी कोई बात देखी नहीं होगी, जस्ट कहेंगे कि मैंने देखा है। No, they have not seen, they have only heard. उन्होंने केवल सुना है। We have heard about that person. मैंने उस व्यक्ति के बारे में सुना है। You know, in Acts of Apostles we read that God says, read Acts of Apostles 9th chapter 13th verse. पढ़िए प्रेरितों का काम 9वां अध्याय उसका 13 वचन। When Saint Paul was sent to these people, जब संत पौलुस उन लोगों के पास भेजा गया, that Ananias said, जब हनन्याह उत्तर दिया, I've heard by many of this man how much evil he had done to thy saints at Jerusalem. Read that verse. हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है कि इसने यरूशलेम बहुत में, सुना है। We heard about this brother so much. इस भाई के विषय में बहुत कुछ सुना I है। heard about that believer so much. मैंने उस विश्वास के बारे में बहुत कुछ सुना है। Not seen anything. कोई कुछ भी देखा तो नहीं है, कुछ नहीं देखा, सुना है। Now they believe it and they act accordingly. अब वो उस बात को विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार वो काम करते See, हैं। when I observe such people and when I get to know about these people, कि वो बोलते हैं we heard this, one thing comes in my mind from the word of God. जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, जब ये लोग कहते हैं कि हमने सुना है परमेश्वर के वचन से, एक बात मुझे याद आती है। You know, when Rahab the harlot, जो राहाब के बारे में हम देखते हैं, when the spies they went, listen carefully, when the spies they went to that land, ये जो जासूस लोग उस देश में गए, what Rahab said, राहाब ने उनसे क्या कहा? we heard how God worked for you, and when we heard that, our hearts did melt. मैंने सुना कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए महान महान काम किए। जब ये सुना तो मेरा हृदय पिघल गया। 2:11, please, Joshua 2:11. यहोशू 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। Please, जल्दी। And as soon as we had heard these things, our hearts did melt. हिंदी। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। हमारा मन पिघल गया। Now she being harlot, never attended any meeting, never took any baptism, never heard of a Holy Spirit, never heard about any preaching. She said first time that we heard about God and our hearts did melt. राहाब तो एक वेश्या थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी कोई प्रचार को नहीं सुना, कोई अद्भुत काम को नहीं देखा और कोई परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। इसके बावजूद कोई मीटिंग में भी नहीं गई, इसके बावजूद वो कहती है कि मैंने परमेश्वर के महान काम को सुना है। If we compare ourselves with this Rahab, who's better than? यदि हम तो इतना मीटिंग में आते, इतना प्रार्थना करते, इतना प्रचार सुनते, इतना वचन पढ़ते, इतना प्रार्थना 4 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, 10 बजे उठ के, 12 बजे उठ के करते हैं। हमसे कौन अच्छा है बोलो? हम क्या सुन रहे हैं? राहब क्या सुन रही है? Who's better? कौन अच्छा है बताइए? कौन अच्छा है? वो जो पहली बार प्रभु के बारे में सुन के जिसका मन पिघल गया, हम जिसका सुन के मन कठोर हो गए। Our hearts are hardened because repeatedly we are hearing all these things. हमारा हृदय कठोर हो चुका है क्योंकि बार-बार हम ये बात को सुनते रहते हैं। On that day, God will keep that Rahab on our side and He'll judge us. उस दिन राहाब को परमेश्वर एक जगह पे खड़ा करेगा, हमारे सामने खड़ा, हमारे बगल में खड़ा करेगा। He'll make us to stand on beside of us and He'll judge us. और राहाब के बगल में हमें खड़ा करके और हमारा न्याय करेगा। We who are hearing all these preachings again and again, we are reading the word of God, we are praying, we are fasting, and still we say, हमने उसके बारे में सुना है, बहुत बेकार है, बहुत। This is what Ananias is saying. Read that verse. आइए वचन को पढ़ें। Acts 9:13. प्रेरितों का काम 9 अध्याय 13 वचन। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। मेरे को उसने भी कॉल किया था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा था। और क्या फिर? कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। बड़ा बेकार इंसान है, बहुत गंदा इंसान है। ओह, हमारे नोएडा फेतु में आ रहे हैं। ओ ब्रदर, हम क्या करेंगे? We have heard of him. हमने उसके बारे में सुना है, देखा ही नहीं है, कभी देखा नहीं है। We have never seen that. हमने उसको कभी नहीं देखा है। So who's better? कौन बेहतर है? Rahab or we? राहाब या हम? So all those who say that we are better, please shout an hallelujah. जितने लोग कहते हैं कि हम राहाब से अच्छे हैं, जोर से हालेलुया पुकारेंगे। चलो, कम से कम इतना तो पता कि हम उससे अच्छे नहीं हैं।
So, this is what happening these days. यही इन दिनों में हो रहा है। That's why this evil is entering the church. क्यों हम लेके आ रहे हैं? We are bringing this evil in the church. इसी तरीके से बुराई चर्च में प्रवेश कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बुराई को हम ही लेके आ रहे हैं। We are bringing this evil in the church. हम ही इस बुराई को एक कलीसिया में We लेके आ are रहे becoming हैं। a channel to bring all this wickedness in the church. हम ही इस बुराई को, दुष्टता को चर्च में लाने का एक कारण बन रहे We are हैं। not busy in God's work. We are entangled in other things now. हम परमेश्वर के कार्यों में लिप्त नहीं है, बल्कि हम संसार के दूसरे कार्यों We में are लिप्त हैं। entangled in making someone fall. हम दूसरे कामों में फंसे हुए हैं कि किसी को कैसे गिराएं। We are entangled and we are busy to correct and assassinate others. हम इस बात में व्यस्त हैं कि कैसे किसी का चरित्र हरण करें। We are doing that. हम ये कर रहे हैं, But we are not doing anything good in the Lord. हम परमेश्वर में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। Sad to say, servants of God, even believers, they are doing such things. ये दुखद बात है कि सब परमेश्वर के सेवक और विश्वासी ऐसा कर रहे हैं। The one thing which I don't know who handed that thing to us. मुझे नहीं मालूम एक बात जो हमें सौंपी गई। किसने वो हमारे हाथ में दिया? We don't know about mobile phone. Mobile. Sitting in the room and there is a word in Psalm 50. Thou sittest and speaketh against thy brother. Read that verse. Psalm 50. भजन 50। Choose. 17. 20. Read. It's 20. 20 वचन। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। Thou sittest and speakest against thy In brother. the corner of the room thou sittest and make a call and you are speaking against your brother. अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ तो फोन में कॉल करता है और अपने भाई के बगल बारे में चुगली करता है। Now when all these things are happened, जब ये सारी बातें हो चुकी, for example if I call someone, उदाहरण के लिए मैं किसी को कॉल करता हूँ, I'm calling Chandan. मैं चंदन को कॉल करता हूँ। So I'm telling Chandan about Ashish. मैं आशीष के बारे में चंदन से बोल रहा See, हूँ। Ashish is like this. देखो आशीष तो ऐसा है, He's not a good person. वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। He's all sleeping all the day. वो हमेशा हर दिन सोता ही रहता है, कुछ नहीं करता है. कोई कुछ नहीं करता है। After telling all these things, ये सारी बातें बोलने के what बाद is the last thing I'll tell him? मैं Anyone? लास्ट बात में उससे क्या बोलूंगा? Anyone experienced older? What last thing I'll tell him? जिनको इस बात का अभ्यास है बताइए, आखिर मैं फोन खत्म करने से पहले मैं कौन सी बात बोलूंगा? Please don't tell him. Please don't tell him. उसको मत बताना प्लीज। Why? क्यों? I want to put my poison in his mind, but I don't want to have a rift with Ashish directly. क्योंकि मैं चंदन के दिमाग में तो जहर घोलना चाहता हूँ, लेकिन आशीष से भी बैर नहीं रखना चाहता। भाई प्लीज मेरे नाम मत बोलना, भाई प्लीज मेरे बारे में मत बोलना। This is what God's people they are doing. That's what I'm telling. This flesh has overtaken us. यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि परमेश्वर के लोग ऐसा करते हैं क्योंकि शरीर ने इसके ऊपर हावी हो गया है। We are not making a call to tell that God is doing this thing in my life. हम इस बात को बताने के लिए कॉल नहीं करते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम We are किया not है। calling anyone to share our testimony. अपने गवाही को बोलने के लिए किसी को कॉल नहीं करते We are हैं। calling to just to backbite and to tell others what they are doing, what wrong they are doing. हम चुगली करने के लिए और दूसरे क्या कर रहे हैं वो बताने के लिए हम फोन करते हैं। Even those who have all the calls data, they are so obsessed with the DPMites that they are doing all these things, such things they are doing. और दूसरे लोग भी इस बात से बहुत ही दूसरे लोग नहीं है जो डेटा कॉल रिकॉर्ड्स का डेटा रखते हैं, वो डिपार्टमेंट भी परेशान है। टीपीएम वाले यही काम करते हैं। So we have all the names, they have all the names. उनके पास सारे नाम हैं। Dear ones, we need to be busy in the battle. प्यारे लोगों, हमें युद्ध में व्यस्त रहना होगा। We have to be busy in the battles. हमें युद्ध में व्यस्त A रहना man होगा। who goes to the war will not entangle with any other thing. एक व्यक्ति जो युद्ध में जाता है वो अपने आप को दूसरी बातों में नहीं फंसाता। He'll untie himself from all the ties of the world. इस संसार के सारे जो बंधन है उनसे अपने आप को वो अलग कर लेता He है। will not have anything behind him when he goes for the battle. अपने जीवन में ऐसी कोई बात वो पीछे नहीं रखता जो उसको उस युद्ध में जाने से रोके। We are in the battle, we say are in the battle, we are sitting in a corner and we doing all these things. हम कहते हैं कि हम युद्ध में और हम युद्ध में ऐसे रहते हुए ये सारी बातें हम कोने में बैठ के करते हैं। David declared that I will go against this giant Goliath. जब दाऊद ने कहा इस जो राजा ये दो दानव इसके विरोध में जाऊंगा, गोलियत के विरोध में। David's brother they came and scolded him. Hey, you are a shepherd. You don't have any armor with you. How you are going to fight this giant? दाऊद के भाइयों ने उसको डांटा, दाऊद तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम इस दानव गोलियत के विरोध में लड़ने जा रहे हो कैसे?
means he was trying to instill that fear in David's life. वो उसके भाई लोग दाऊद के अंदर उस भय को उत्पन्न करना चाहते थे। The fear which gripped their life, they were trying to instill that fear in David's life also. उस भाई ने जिस भाई ने उन भाइयों के जीवन को जकड़ा हुआ था, उसी भय को दाऊद के अंदर भी डालना चाह रहे The थे। encouragement the discouragement that has engulfed us, we are trying to put that discouragement in others' life also. जो निराशा हमारे जीवन में ग्रस्त भरी हुई है, उस निराशा को हम दूसरों के अंदर भी डालना चाहते And this हैं, is what we are sowing in others. और यही बात हम दूसरों के अंदर बोते हैं। Everything that we are seeing, and we are sowing this bitterness, this discouragement and this negativity in others' mind. दूसरों के बीच में जो हम देखते हैं, ये सारे कड़वाहट, जो सारे नकारात्मक उनके अंदर बोते चले आते हैं। We are doing these things with all people. हम ये बात सभी लोगों के साथ करते हैं, और फिर we say, please don't tell them. और फिर उसके बाद हम कहते हैं ये प्लीज बताना मत। Please मेरा नाम मत बोलना. If you are so bold by telling all these things, सीधे जाके बोलो ना, मैंने बोला. यदि आप ये बातें कहने में इतने साहसी है, तो सीधे जाके बोलो कि मैंने बोला है। अगर आपको प्रभु का काम छोड़ के, आपको युद्ध छोड़ के, प्रभु का सेवा छोड़ के, प्रभु का काम छोड़ के ये करना है, तो हिम्मत से बोलो भाई मैंने बोला है। Isaiah he feared. Then after that he said, I am the person with whom the word of God has been sent to you. और यशायाह ने कहा कि मेरे द्वारा ही परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए बोला गया है। Peter was fearful. No, I'm not the one. I'm not the one. लेकिन पतरस को देखने में वो घबराया, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं I'm not the हूँ, one. मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। But after he received the Holy Spirit, लेकिन जब उसने अभिषेक को पाया, he said, "You are the ones who crucified him." उसके बाद उसने Before all the कहा, congregation. ये पूरी सभा के बीच में खड़े होकर कहा, तुम ही लोग हो जिसने यीशु को He feared the damsel. उसने एक लड़की को देख के डर गया। He feared the damsel, but before this thousands of people, he stood and said, "You are the one who crucified him." पहले पतरस एक छोटी लड़की को देख के डर गया, लेकिन उसके बाद जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, पवित्र आत्मा पाने के पश्चात एक पूरी सभा के बीच में खड़ा होकर कहा, तुम ही लोग हो जिसने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। Let me clear this and I'll wind up. और मैं इसको आपको समझा के मैं आप खत्म I'll करूंगा। tell you the reason why we say, "Don't take my name." हम ये कौन सा कारण है कि हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा नाम मत लेना। For example, the same story I'll tell Chandan about Ashish, and I'll tell Chandan, "Please don't take my name, or don't. I've told this thing to you. Don't tell anyone." यही सारी बात मैं आशीष को बोलूंगा कि चंदन के बारे में कोई मैं चुगली कर रहा हूँ आशीष से कहूंगा कि प्लीज चंदन को मत बताना। आपने उल्टा कर दिया। Okay, सही है। Okay, तो what is the reason I'm saying that? ये क्या कारण है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ? Anyone? हाँ? क्यों? Anyone? क्योंकि चंदन को मेरे जीवन के बारे में पता, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है। अगर वो बोलेगा तो बोलेगा वो कौन सा सही है। दिस इज द रीजन, क्योंकि उसको हमारे जीवन के बारे में भी पता है, इसलिए हम बोल देते और बोलते मेरा नाम नहीं बोलना। क्योंकि अगर आपका जीवन सही नहीं है तभी आप बोलोगे मेरा नाम नहीं बोलना। अगर आपका जीवन सही है तो बोलना ब्रदर ने बोला बोल दो, वो हिम्मत आएगा। क्योंकि अपने जीवन में पाप, हमारे पाप खुद को पता है ना, इसलिए हम बोलते हैं हमारा नाम नहीं बोलना। तो अगर ऐसा है तो we are busy in something else rather than this busy in the battle. यदि ऐसा है तो हम किसी और बात में व्यस्त हैं, इसके बजाय कि हम परमेश्वर के युद्ध में व्यस्त रहें। Being in the church, being in Jerusalem, doing all these sort of things will make you to fall for flesh. कलीसिया में रहते हुए, यरूशलेम में रहते हुए यदि इन सारी बातों को करते हैं तो आप जरूर शरीर के लिए गिर जाओगे। Believers and servants of God, they are more interested in all these things now. विश्वासी लोग, सेवक लोग हों, इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। In the dining hall, nobody speaks about the word of God. In dining hall, we speaks about the complaints, grumblings, and murmurings. खाने की जगह में परमेश्वर के वचन के विषय में कोई बात नहीं करता, वहां पे गुड़गुड़ाना और दूसरों के विरोध में चुगली करना होता है। Dear ones, let's all change this mindset. प्यारे लोगों, आइए इस मानसिकता को हम बदल दें। We are in Jerusalem. There is a battle we need to fight. Let's not tarry in Jerusalem. Let's go out and fight the battle. हम यरूशलेम में है, यहाँ पर हम आके इंतजार ना करें, आइए हम चले We एक युद्ध are में जाएं। anointed priests and kings. हम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए हुए याजक और राजा हैं। We are the kings that we need to go for the battle at the beginning of the year. हम वो अभिषेक राजा है जो साल की शुरुआत में युद्ध में जाना We जरूरी have है। begun a year. हमने एक साल को प्रारंभ किया है, There is a battle before us. हमारे सामने एक युद्ध है। Let's all prepare ourselves and put on the armor of God to fight this battle. आइए परमेश्वर के सारे शस्त्रों को धारण करते हुए इस युद्ध में हम चले जाएं। Let's not be slack in our life. अपने जीवन में हम लापरवाह ना Let's not रहें। give room for the spirit of slumber to work. हमारे जीवन में भारी नींद की आत्मा काम करने के लिए जगह न Let दें। not this
flesh overtake us. ये शरीर का काम हमारे ऊपर हावी ना हो, Let's not the work of the flesh overtakes us. ना शरीर के कार्य हमारे ऊपर हावी हो, Let's not the lust of this world overtakes us. ना इस संसार के कोई अभिलाषा हमारे ऊपर हावी हो, Let's not the lust of the eyes overtakes us. ना आंखों की अभिलाषा हमारे ऊपर हावी हो, Let's not the pride of life overtakes us. ना जीवन का घमंड हमारे ऊपर हावी हो। Let's be humble and prepare ourselves for that battle which is kept before us. आइए मालिक बन जाए, जो युद्ध हमारे सामने रखा है उस युद्ध के लिए हम तैयार हो जाएं। All those who are ready to fight this battle, please shout an hallelujah. जितने लोग इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हैं, आइए जोर से एक हालेलुया पुकारेंगे। लड़ाई हमारी यहोवा लड़ेगा, विजय सदा हमें देगा। लड़ाई हमारी है यहोवा लड़ेगा, विजय सदा हमें देगा। शक्ति और बल है व्याप्त हमारा, लड़े हम आत्मा के द्वारा, लड़े हम आत्मा आगे बढ़ा, हमेशा विजय हमें बनाना। लड़ाई हमारी है यहोवा लड़ेगा। सब लोग ताली बजा के गाइए इसमें। हमें देगा, Thank you Jesus। लड़ाई हमारी है, विजय सदा हमें देगा। शक्ति और बल है व्याप्त हमारे, लड़े हम आत्मा के द्वारा, लड़े हम आत्मा के द्वारा। हमेशा विजयी हमें बनाता, हमेशा विजयी हमें बनाता। जय गीत गाए, हालेलुया गाए। हमें हालेलुया। Let's all put on the strength of God. आइए परमेश्वर के बल को धारण कर ले। To fight this battle, let's all put on the strength of God. इस युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर के बल को धारण कर ले। महान प्रभु विजय